Welcome back to physics class. Today's lecture number 11, chapter 3, motion in a plane. Yesterday we started the centripetal force, uniform circular motion. We have studied the what do by circular motion, what do by non-uniform motion, what do by uniform circular motion, and the different terms related to uniform circular motion, like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, okay, etc., and centripetal force and centripetal acceleration. We have derived the expression for centripetal acceleration, that is a is equal to minus omega square r, and the expression for centripetal force is mv square upon r, or mr omega square, right? So negative sign of this acceleration indicate that the direction of centripetal acceleration is seeking toward a center which is opposite to that of radius vector or position vector. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. अभी ये लेसन का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज द कोनिकल पेंडुलम. सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. पेंडुलम आपने नाम सुना होगा, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम is a heavy metallic bob suspended by the rigid support which moves to and fro, but in the in the straight line path. That pendulum moves in a straight line path. तो ये जो कोनिकल पेंडुलम है, this is also one of the simple pendulum. Okay, so first of all I will show the demonstration for this, and then we will define the statement. We'll write the definition of simple pendulum. So let's see what is the simple pendulum. What is the conical pendulum? Conical pendulum is a simple pendulum which is suspended to the rigid support. This is the point of suspension, okay, and this is the point of gravity here, right? Now simple pendulum, it revolves like this, it oscillates like this. Simple pendulum oscillate in this path, okay. But in case of conical pendulum, there is a formation of cone at the point of suspension. So see, what is the conical pendulum? Conical pendulum is a simple pendulum which revolve in a horizontal circle, so that the center of the circle, which is just above the point of suspension, and so that which moves in a constant velocity, which moves with a constant speed. जो पेंडुलम है वो constant speed से घूमता है horizontal circle में, right? So that is called as the conical pendulum. Understood बच्चों? सबको समझ में आ गया? एक बार वापस बोलता हूँ मैं. Conical pendulum is a simple pendulum which revolve in a horizontal circle such that the center of the circle, center of the circle, just above the point of suspension, so that which can revolve in a horizontal circle with constant speed or constant velocity. That pendulum is known as conical pendulum. और हमको क्या निकालना है? We have to derive the expression for the period of conical pendulum. Period हमको पता है, कल हमने period का भी definition देखा. Period is defined as to time taken to complete one cycle. तो यहाँ पे cycle क्या होगा? यहाँ पे एक revolution है. तो एक revolution complete करने के लिए जो भी time लग रहा है वो time को हम क्या बोलते हैं? Period of pendulum or period of conical pendulum. So let's write the definition of conical pendulum. Technically अच्छी तरह लिख लेते हैं उसको, so that if the question comes in exam, so you can able to write the definition of conical pendulum. Conical pendulum is a simple pendulum. Simple pendulum in a horizontal pendulum whose bob revolves in horizontal circle with constant speed, If it revolves in a constant speed, means it possesses the uniform circular motion with constant speed, with center of the circular path
circular path below the point of suspension, below the point of suspension, below the point of suspension, point of suspension, such that the string makes, such that string makes the string makes a constant angle with the vertical, constant angle theta with the vertical, So if you are writing the definition properly in exam in physics, so you will get a good marks or full marks. Okay, अगर कोई वर्ड अगर मिसिंग है तो शायद हो सकता है डेफिनेशन कंप्लीट ना हो. तो अभी इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको फाइंड करना है दी एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. देखो बच्चों, इस पे क्वेश्चन जो आने वाला है, नो क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम, तो 1 मार्क का हो गया. Show that its time period is t is equal to, जो फॉर्मूला दिया हमको डिराइव करना है, where l is the length of string, theta is the angle of that string makes with the vertical, and g is the acceleration due to gravity. तो जो फॉर्मूला दिया है टाइम पीरियड का वो हमको डिराइव करना है. जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पेंडुलम का हमारा जो फॉर्मूला है t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ l by g. तो उसी के जैसा ही सिमिलर, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एल के जगह पे एल कॉस थीटा आएगा, बस उतना ही फर्क है. तो रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज एज इट इज. ओके, तो अभी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो डायग्राम बहुत इजी है. सो लेट्स हैव द रिजिड सपोर्ट. पहले रिजिड सपोर्ट को निकालेंगे. दिस इज द रिजिड सपोर्ट एंड हियर द स्ट्रिंग इज टाइट. अभी देखो यहाँ पे मैं आपको डेमो से दिखाता हूँ. ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे से इसको सस्पेंड किया है एंड विच रिवॉल्व इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट रिवॉल्व लाइक दिस. और जो एंगल बना है दैट एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल विल बी कांस्टेंट. वो एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है. आप बोलोगे तो एक ऐसा घुमाएगा, फिर ऐसा घुमाएगा और फिर बाद में क्या होगा, नहीं चलेगा. ओके, सो विच मेक द कांस्टेंट एंगल थ्रू आउट द मोशन, दैट इज कॉल्ड एज द कोनिकल पेंडुलम. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. पहले हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दिखाएंगे. दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड जस्ट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, एंड लेट्स ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल सर्कल हियर. I will draw with the red pen so that you can identify this horizontal circle. And this is what the string. Just see, sometime this question comes in exam. Simply draw the diagram of conical pendulum with the proper labeling, with the proper forces. Okay, तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड व्हाट आर द एंगल मेड हियर. यहाँ पे जो भी एंगल बनाया हो, कितना एंगल, थीटा बनाया है. देन दिस इज द रेडियस, ये होगा हमारा रेडियस. तो रेडियस में इधर ले लेता हूँ थोड़ा साइड में. दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड दिस इज द लेंथ. ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज द थीटा एंड हियर इट इज द बॉब. जो भी बॉब है, सिंपल पेंडुलम बॉब, यहाँ पे वही पेंडुलम का ही बॉब है, लेकिन सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल सर्कल घुमाता है. फर्क इतना ही. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे देयर आर सम फोर्सेस आर एक्टिंग. जो टेंशन, जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग इज टाउट, तो इट इज टाउट बिकॉज ऑफ द टेंशन. तो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे टेंशन टी लिया हमने. ओके, नाउ दिस टेंशन टी इट एक्ट एज द रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे रिजल्टेंट में काम करेगा एंड दिस टेंशन टी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. तो एक क्या आएगा, एक नीचे जाएगा, one component will downwards. That downward component of this T, that will be mg, weight of the bob. यहाँ पे weight of the bob रहेगा mg, हमेशा vertically downward act होता है. और दूसरा जो component है, that will be the T, जो T tension है, that result into two components, one is vertical and one is horizontal. और जो horizontal, जो vertical component है,
that vertical component will be in the vertical direction. इसको थोड़ा मैं जरा ऊपर करता हूँ for better understanding, हमको तो लग रहा है. Then this will be the, so if this is theta, so ये भी theta आएगा. तो अल्टरनेट एंगल बन गया यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल. तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अगर ये थीटा है तो ये इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये जो एडजेसेंट कंपोनेंट होगा t का क्या बनेगा, दैट विल बी t cos थीटा. रिमेंबर दिस कंपोनेंट इज t cos थीटा. आप बोलोगे कैसे रट्टा मारा है क्या? नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं यहाँ पे. तो जो भी एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड का जो कंपोनेंट है, सपोज दिस इज t, the component of t in the direction, in the horizontal direction, in the adjacent side, this side will be t cos theta. और यहाँ पे इसका जो ये component होगा, this will be the horizontal component, this direction. तो ये component होगा, this component will be, if this is t cos theta, so this will be t sin theta. ये कौन सा होगा? t sin theta. If you observe carefully, यहाँ पे t cos theta और mg दोनों opposite है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, दोनों का जो एडिशन होगा दैट विल बी जीरो. मतलब बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट जो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, जो नेट फोर्स होगा बिकॉज ऑफ द वेट एंड द टेंशन, सो दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो टी साइन थीटा है, तो कंपोनेंट कौन सा फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे? टी साइन थीटा विच इज टुवर्ड द सेंटर, ये साइड पे होगा. और वो क्या काम करता है? विच हेल्प फॉर रोटेशन और रिवोल्यूशन ऑफ द पेंडुलम, राइट. मतलब हमको कल हमने देखा which force is required to perform the body in a circular path, so that is the centripetal force. तो यहाँ पे t sin theta जो है, तो t sin theta किसका काम करेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा. और हमको पता है सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Fc is equal to, the mass of the bob is m and velocity is v square upon r. So the v is the horizontal velocity of the bob, which is the constant velocity, right? And t sin theta is the component of t in the horizontal direction. Then if I am taking, this is L and this is R, अगर ये तो ये भी R आएगा रेडियस, यहाँ पे भी R आएगा. This will be the radius of the horizontal circle. और ये L है, तो what will be this component? मान लो this h, height of the pendulum here, that h can be taken as, that will be L cos theta. This is L cos theta, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसके जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट पे यहाँ पे, ओके, तो दिस विल बी द h, L का L cos थीटा होगा. h इज इक्वल टू L cos theta, या इट इज L cos theta. देन यहाँ पे r अगर लेना है तो इसका ऑपोजिट कंपोनेंट आएगा, तो ऑपोजिट कंपोनेंट भी r इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ L कैसे आएगा? L sin theta. देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री है, नथिंग एल्स. यहाँ पे जो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे रूल्स यूज करना है. ओके, दिस इज t cos theta, t sin theta. If this is r, and again if I am taking in terms of length, and this is h, so h can be written as in terms of L will be L cos theta, or this r can be written as L sin theta. So this is just a simple idea about let this point be p, इसको कुछ नाम दे देंगे. ये पॉइंट को मैंने p लिया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को मैंने यहाँ पे वो दिया. दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अब यहाँ पे देखो, ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल बन गया. ओके, और हमारा मकसद क्या है यहाँ पे? सो वी जस्ट हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड. तो लेट्स राइट सम सिंबल हियर. दिस इज सेंटर को हम ले लेंगे, कुछ सी पॉइंट ले लेंगे सेंटर. सो हियर द PC is the radius of horizontal circle. Okay, then OP is equal to length of string. Point O is the point of suspension. Then OC is equal to H, which is equal to L cos theta. Then R is the radius. R is equal to radius, which is in terms of L sin theta.
अभी अभी क्या करेंगे? So everyone understood the definition of conical pendulum is a simple pendulum whose bob revolves in a horizontal circle with constant speed v with the center of the circular path below the point of suspension. तो ये जो point of suspension है उसके just below यहाँ पे center of the circular path है and the string makes an angle theta with the vertical. तो होंगे constant बनाती है. So consider conical pendulum string length L here. So all these parameters are over. Now the necessary horizontal centripetal force, necessary horizontal centripetal force Fc, which is required, that is mv square upon r. So this is equation 1. Okay, this is mv square upon r. Now here Fc is the centripetal force. Actually Fc जो है यहाँ पे, this is here Fc. This Fc will be the resultant of this tension and this weight. देखो यहाँ पे, मतलब साइड में अगर ड्रॉ किया तो ये ऐसा आएगा. तो ये हमारा Fc आएगा. ये T cos थीटा है, टेंशन, द कंपोनेंट ऑफ टेंशन along the string, उसका कंपोनेंट लिया एंड यहाँ पे वेट आ गया, बराबर. तो ये दोनों अपोजिट में एग्जैक्टली. तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? Fc होगा. और Fc क्या करता है? Which act as a centripetal force so that the pendulum can revolve in a horizontal circle. And why this pendulum is called conical pendulum? देखो यहाँ पे, अगर if we join like this, इसको join किया तो कोन बन गया यहाँ पे. There is a formation of cone, right? And that's why it is called as a conical pendulum. Now the tension T resolved into two components. So tension along the string, resolved into two components. और हमें हमको पता है कि कोई भी अगर वेक्टर है that are resolved into two components, one will be horizontal, one will be vertical. Okay, so here the horizontal component of T will be T sin theta, and vertical component of T is equal to, look at this vertical component, it is T cos theta. Then next point क्या है? जो vertical component है T cos theta, which is counterbalance the weight of the bob. Okay, so T cos theta balances the weight of the bob, or we can say gravitational force of body, nothing but क्या होता है, उसको हम weight बोलते हैं, right? So weight of the bob which is m into g, mg. Then T sin theta helped to revolve the bob in horizontal circle. It means this T sin theta act as centripetal force, which is equal to mv square upon r. Okay, तो हम क्या करेंगे? अभी दोनों एक्सप्रेशन ले लेंगे. T cos थीटा, पहले हम T sin थीटा लेंगे. T sin theta is equal to mv square upon r centripetal force, and T cos theta is equal to weight of the bob. Okay, अभी इसको कुछ इक्वेशन नंबर दे देंगे. Let be equation number 2, let equation number 3, right? अभी हम क्या करेंगे? दोनों का रेशियो लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, so I will just take the ratio of both. दोनों का रेशियो लेंगे.
तो रेशियो लिया था क्या होगा, टी टी कट हो जाएगा, मास मास कट हो जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, साइन अपॉन कॉस इज tan. तो यहाँ पे रहेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे r बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, मान लो इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं मैं. तो इक्वेशन 5 क्या इंडिकेट करता है, इक्वेशन 5 इंडिकेट दैट द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम, जो पेंडुलम है कोनिकल पेंडुलम, उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी द दिस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा. आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो रेडियस होगा आर होगा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थीटा जो है, थीटा इज द वर्टिकल एंगल, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. यहाँ पे जो है थीटा, दैट थीटा इज इक्वल टू, यू हैव टू पुट हियर. ओके, सो समटाइम्स न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं कोनिकल पेंडुलम पे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बट हमारा मकसद क्या है, आवर एम इज टू फाइंड पीरियड. ओके, तो पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, लेट अस डिफाइन द टर्म पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. इट इज द टाइम टेकन, सी पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डिफाइंड एज इट इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन हॉरिजॉन्टल सर्कल. तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो भी मतलब यहाँ से यहाँ तक वापस. ओके, सो व्हाट आर द टाइम इज टेकन बाय दिस पेंडुलम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं टाइम पीरियड को, डिस्टेंस ट्रैवल, जो अभी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी द सर्कमफरेंस, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कोनिकल पेंडुलम इन वन हॉरिजॉन्टल सर्कल, वो कितना होगा, सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल. तो अगर रेडियस अगर r है, यहाँ पे रेडियस r है, इफ द रेडियस इज r, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी सर्कमफरेंस 2 pi r, राइट. सो 2 pi r अपॉन इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, so that v can be substituted here, right. So distance upon velocity, you will get a expression for time period. So let's derive इसका screenshot ले लो. ओके स्टूडेंट, अभी हम डिराइव करने वाले टाइम पीरियड, यहाँ तक आपने लिख लिया. Now we know that v is equal to, जो फॉर्मूला है हमारे पास, फाइंड द वेलोसिटी निकाल दिया अभी. सो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम is defined as time taken by pendulum, conical pendulum, time taken by conical pendulum to complete one horizontal circle. Okay, and this time period t is equal to circumference upon velocity, that will be horizontal velocity, which is 2 pi r upon v. This is 2 pi r upon v. Okay, so let's substitute the value of v. यहाँ पे जो velocity उसका फॉर्मूला substitute, t is equal to 2 pi r upon square root of r g tan theta. Okay, then यहाँ पे क्या आएगा, r यहाँ पे दिया हमने, r is equal to l sin theta. So 2 pi into l sin theta
डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा. Then t is equal to, ये पी इसको एल ही रखेंगे, विल कीप दिस एल, टेम्पररी विल कीप दिस आर, विल कीप दिस आर, क्योंकि नीचे भी आर है वो उसको सॉल्व करना है. सो t इज इक्वल टू एक काम करेंगे 2 पाई इंटू, अभी इसको अगर स्क्वायर रूट में लेना है तो उसको आर स्क्वायर हो जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर जी tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस. इसको मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक आर कट हो जाएगा, 1 आर विल बी कट. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ cos theta will go up, so r cos theta divided by g sin theta, g sin theta. Then t is equal to, अभी r cos theta कहीं पे था यहाँ पे, so मेरी l कहाँ गया, r cos theta, this is h is equal to l cos theta. r हम लेंगे यहाँ पे, r can be substituted as l sin theta. Okay, put the value of r here. Okay, but r is equal to l sin theta. Radius of the horizontal circle can be written as l sin theta. So t is equal to, time period of conical pendulum is equal to 2 pi into bracket यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, L sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय G sin थीटा. तो sin थीटा कट हो जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, वी कैन राइट 2 पाई L cos थीटा अपॉन स्मॉल g. गॉट इट. देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे r के जगह पे L sin थीटा को सब्स्टिट्यूट किया. सो वी हैव सब्स्टिट्यूट हियर L sin थीटा इनटू cos थीटा. sin थीटा कट हो जाएगा, बचेगा क्या, L cos थीटा अपॉन g. सो लुक एट द डायग्राम हियर, L cos थीटा, बट L cos थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस हाइट, जो भी हाइट दिया है ट्रायंगल का, तो यहाँ पे वो हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, सो दैट h कैन बी टेकन एज. ओके, बट h is equal to L cos theta, that is the height of the conical pendulum, okay, or this axis. So t is equal to 2 pi under root of L upon g. So this is what, sorry यहाँ पे h आएगा, h upon g. So this is the formula for the time period of conical pendulum. Okay, so I hope you all must understood this. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं. टाइम पीरियड हमारा फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, सरकमफरेंस, एंड सरकमफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल कितना है, 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस, अपॉन v, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो 2 पाई r अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हमने पहले डिराइव किया है, उसके पहले चौथा या पांचवा इक्वेशन था, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया rg tan थीटा. सो 2 पाई r अपॉन rg tan थीटा. देन यहाँ पे 2 पाई r को मैंने थोड़ा स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, तो आई गॉट दिस r स्क्वायर अपॉन rg sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सो ऑन. बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स. सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. ओके, अभी नेक्स्ट छोटा सा एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए. State how the period of conical pendulum depends on the various factors. 2 marks के लिए. तो what are that factors? तो to explain the factor on which the time period of simple conical pendulum depends. So that factor are, हम उसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे. Time period t is equal to 2 pi under root of L cos theta upon small g. L cos थीटा अपॉन जी, जो फॉर्मूला ये L cos थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला लेंगे. देखो बच्चों, यहाँ पे 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उसको तो कोई वो तो चेंज नहीं होने वाला. यहाँ पे क्या आता है, t पहला फैक्टर है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ.
तो जो भी कोनिकल पेंडुलम का लेंथ है, ओके, मान लो सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस, we will do the practically so you will understand better. Suppose if I am taking a small length of the pendulum, right, and just revolve this, right, so time period भी कम होगा, right, तो time period कम होगा मतलब क्या होगा, it will take less time to complete one horizontal circle. ये length कम होगा, यहाँ पे length कम होगा तो time period कम. If I am increasing the length को बढ़ा दिया, अभी length बढ़ा दिया मैंने, मान लो if I am taking this length or the same radius, वही radius को अभी, right, so it takes time, much more time, ज़्यादा टाइम ले रहा है to complete one horizontal circle. तो time period of conical pendulum is directly proportional to the square root of the length. As the length increases, the time period of conical pendulum also increases. तो पहला फैक्टर आ गया ये square root of length. दूसरा क्या आएगा, अगर मान लो if I increase the theta, अगर theta बढ़ाया मैंने, right, मान लो शुरू में मैंने theta छोटा किया, छोटा किया, तो cos थीटा अगर स्मॉल है तो cos थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, इट विल बी मोर, तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. अगर मैंने थीटा बड़ा किया, इफ आई इंक्रीज द थीटा हियर, थीटा अगर यहाँ पे बढ़ा दिया, एंगल बढ़ा दिया, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा. cos 90 कितना होता है, 0 होता है, राइट, तो मतलब द टाइम पीरियड विल बी लेस. ओके, तो अभी देखो आप, मैं थोड़ा ले तो वही ले लेता हूँ, सिर्फ एंगल जो है पहले यहाँ पे था, अभी वो बढ़ा देता हूँ, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है. So कम हो गया, काफ़ी कम हो गया for the same length of, okay, so as the theta increases, cos theta decreases, and as the cos theta decreases, so time period decreases. Okay, so this is what the factor. तो second factor क्या आएगा, second factor will be t is directly proportional to the square root of cos theta. As theta decreases, या इसको बढ़ा देते, चलो, as theta increases, थीटा को बढ़ा देते पहले, as theta increases, ओके, थीटा को बढ़ा दिया तो cos theta decreases, and as cos theta decreases, t decreases. अगर टाइम पीरियड कम हो गया तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज. एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज मतलब वो स्पीड में घूमता रहेगा, it will revolve fast, omega will increase, right. तीसरा क्या है, third factor on which the time period of conical pendulum depends, that is t is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. तो जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा, जैसे जुपिटर पे ग्रेविटी ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टाइम पीरियड कम मतलब इट विल रोटेट फास्ट, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा. अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर से कम है, 2.5 टाइम्स कम है, तो अगर जी कम है तो टाइम पीरियड अर्थ पे ज़्यादा होगा. ओके, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ कोनिकल पेंडुलम ऑन दी मून पे क्या है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है, कम है, तो अगर ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड विल बी मोर, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा टू रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट. So what are the factor for the time period of simple pendulum? The same factor also for the conical pendulum, except the angle made by that string with the vertical, except this angle. Okay, तो angle पे यहाँ पे सिर्फ फर्क है और कुछ नहीं है. So just make a note of this. Take a screenshot for this. इसका screenshot ले लो. Okay, student. Next time for the conical pendulum, we are talking about angular velocity or angular speed. Angular velocity का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T. तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर कोनिकल पेंडुलम will be, क्या फॉर्मूला होगा, 1 upon 2 pi under root of g by L cos theta, or this can be written as 1 upon 2 pi under root of g upon h, height को अगर in terms of height लेना है तो, right. तो what are the factors here? So as the g, उसको exactly opposite करना है,
जो हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले ले उसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है. सो एज g इंक्रीजेस, अगर g को बढ़ाया, g इंक्रीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ाया, सो ओमेगा आल्सो इंक्रीजेस, ओमेगा आल्सो इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी of any body rotating revolving, same formula है, right? Omega also increases as the length increases, omega decreases, as theta increases, cos theta decreases. Okay, as cos theta decreases, तो क्या होगा? ओमेगा इंक्रीजेस. This is what. Okay, so this is for the angular velocity. So in this way we have finished the topic motion in a plane, right? तो अभी आगे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, सो लेट्स हैव द फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके बेस पे जो भी फॉर्मूला है वो फटाफट फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट वी विल फाइंड इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं. So formulae, so पहला फॉर्मूला है t is equal to distance circumference upon velocity. सेकेंड फॉर्मूला क्या है? ओमेगा is equal to angular velocity is equal to 2 pi upon capital T. और थर्ड फॉर्मूला है v is equal to r omega, the relation between linear velocity and angular velocity, right, in the case of uniform circular motion. Fourth formula है acceleration is equal to v square upon r, or this can be written as r omega square, or which is equal to v into omega. तीन फॉर्मूला हमने डिराइव किया है. फिफ्थ फॉर्मूला है that is for centripetal force, F is equal to m into a, which is equal to mv square upon r, which is equal to mr omega square, which is equal to mv omega. Same formula. Okay. Then for the conical pendulum, conical pendulum में क्या क्या फॉर्मूला देखा हमने? T is equal to 2 pi square root of L cos theta upon small g, or T is equal to 2 pi square root of L cos theta can be written upon h upon g. Okay, and tan of theta is equal to v square upon r g. So these are the simple formulae to solve the numerical based on uniform circular motion and conical pendulum. I hope जिसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, so that we can solve the numerical based on this. तो पहला numerical हम लेंगे which is unsolved in the textbook. So first numerical unsolved in textbook page number 46. तो आपके पास पीडीएफ फाइल होगा, तो पीडीएफ फाइल में फटाफट न्यूमेरिकल देख लो पेज नंबर 46 पे. लेट्स look at the problem. A car moves in a circle at a constant speed of 50 meter per second. So car is moving with a constant speed 50 meter per second. Okay. Textbook में 9 नंबर का सम है, 9 रोमन में 9 है. And completes one revolution in 40 seconds. तो जब एक रिवोल्यूशन 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? The time period is given. So capital T is given. Capital T is 40 second. 40 second. Determining the magnitude of acceleration of the car. Very simple. Okay. So acceleration निकालना है. To find the acceleration. अभी देख रहे हैं यहाँ पे acceleration का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. तो ये तीन फॉर्मूला है, v स्क्वायर अपन r, r ओमेगा स्क्वायर v ओमेगा, तीन फॉर्मूला दिया है, राइट.
तो देखो बच्चों यहाँ पे रेडियस तो दिया नहीं है, आर नहीं दिया है, राइट, यहाँ पे भी आर नहीं दिया है, तो ये दो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला का v इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ओमेगा को हम टाइम पीरियड में लिख सकते हैं ये फॉर्मूला में, यहाँ पे टाइम दिया है तो ओमेगा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन। सो a इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू v इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, बहुत सिंपल है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है 40, तो 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 1 जा 2.5 आएगा यहाँ पे, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.1, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर एंड दैट आंसर इज 7.855 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका एक मार्क कट हो जाएगा, दिस न्यूमेरिकल कैन आस्क फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, देन सब्स्टिट्यूशन करना है और कैलकुलेशन भी करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कैलकुलेशन करना है, and then write the final answer with the unit so that you will get a full credit for this numerical। तो 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। Now the next sum, अभी फार्मूला सबको याद हो गया, I hope so, so I am writing this formula। नेक्स्ट सम है पेज नंबर 46, वो भी अनसॉल्व है, 10वां पेज नंबर का टेक्स्ट बुक unsolved, page number 46। A particle moves in a circle with a constant speed of 15 meter per second, same formula है, v is equal to 15 meter per second। The radius of the circle, यहाँ पे radius दिया है, radius of the circle is 2 meter, so r is equal to 2 meter। डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वही क्वांटिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू फाइंड करना है। सो फॉर्मूला लिख लेते पहले, फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे रेडियस दिया है, वेलोसिटी दी है, मतलब पहले ही फॉर्मूला है, यहाँ पे ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, या v इंटू ओमेगा यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो जो r दिया है, जो क्वांटिटी दी है वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। मेनी टाइम्स कभी कभी क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि सर हमको न्यूमेरिकल थ्योरी आता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना आता है, क्योंकि फॉर्मूला कौन से यूज करने का, वही सबसे कठिनाई है हमारी। बच्चों कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ आप प्रॉब्लम ठीक से लिखो, गिवन लिखो, उसके हिसाब से जो फाइंड करना है वो लिखो, एंड जो फार्मूला है आपको प्रॉपरली देखना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर आएगा, 15 इंटू 15 डिवाइड बाय रेडियस कितना है 2, 2 1 जा 2 7.5 जा, सो दिस विल बी कितना आएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज व्हाट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमेशा मेक अ हैबिट ऑफ गिविंग द रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर द आंसर, सो दैट, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है इस पे ध्यान देता है और जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान देता है, सब चीज बराबर नहीं उस पर ध्यान देता है, राइट। अगर आपने सिस्टमेटिकली सॉल्व किया तो यू विल गेट 2 मार्क, कितना ईजी है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है 2 मार्क के लिए। Let's go on the next sum। अभी ये टेक्स्ट बुक में शॉर्ट प्रॉब्लम है, सो इन द टेक्स्ट बुक सॉल्व इन टेक्स्ट बुक, इसका पेज नंबर 43, पेज 43, प्रॉब्लम नंबर 3.8, example number 3.8 from the text। An object of mass 50 gram
moves uniformly along a circular orbit. एक ऑब्जेक्ट लिया वो गोल घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में with an angular speed of 5 radian per second. यहाँ पे ओमेगा दिया है. If the linear speed of the particle is 25 meter per second, linear speed मतलब small v दिया है. What is the radius of the circle? Calculate the centripetal force acting on the particle. यहाँ पे दो क्वांटिटी निकालनी है. सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी है, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, राइट. तो दे आर गिवन द मास भी दिया यहाँ पे. सो लेट्स राइट द गिवन क्वांटिटी, गिवन डेटा. मास ऑफ अ पार्टिकल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ पार्टिकल, mass of particle is 50 gram. Then angular velocity omega is equal to 5 radian per second, 5 radian per second. और दूसरा दिया linear velocity which is 25 meter per second. और क्या निकालना है? to find radius of circle, radius r question mark and centripetal force question mark. ओके, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करना है हमको. फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे आर निकालने के लिए? अगर आर निकालना है, वी दिया है, ओमेगा दिया है, राइट. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, विच इम्प्लाइज दैट v दिया है, ओमेगा दिया है, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा. तो v कितना है? v इज 25 डिवाइड बाय ओमेगा कितना है? 5. सो विच इज 5 मीटर. ओके, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? 5 मीटर. तो रेडियस मिल गया 5 मीटर. अभी नेक्स्ट क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर अपॉन आर. कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस भी निकाला है, राइट. और एक फॉर्मूला है इसमें एम वी ओमेगा, एम वी ओमेगा, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वी भी दिया है, ओमेगा भी दिया है. तो इट इज बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट. ये फॉर्मूला मिलेंगे तो आसान होगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? अभी देखो यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं पता है? जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे जो मास है, राइट, वी क्या दिया है? मीटर पर सेकेंड में दिया है. वी इज मीटर पर सेकेंड which is the SI unit of speed, right. ओमेगा किसमें दिया है? रेडियन पर सेकेंड, वो भी SI यूनिट है. लेकिन जो मास दिया है, मास ऑफ द पार्टिकल, इट विच इज इन ग्राम, राइट. सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, whenever you are solving numerical in physics, first of all ensure that all the quantity which you are going to substitute in the formula may be in the same system of units. यहाँ पे जो मास दिया है, दिस मास नॉट इन SI यूनिट, तो ग्राम में है. ग्राम मतलब CGS यूनिट ऑफ मास. तो कन्वर्ट दैट ग्राम इनटू किलोग्राम. तो 50 अपॉन 1000 से डिवाइड करना है, तो 0 0 कट हो जाएगा. सो 0.05 kg. ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल which revolve in the horizontal circle or performing circular motion. तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.05 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है? 25 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना है? 5. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करो. 5 5 दैट 25. ओके, सो दिस विल बी. ये काम करते हैं यहाँ पे ना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, डेसिमल जब मल्टीप्लाई कर दी. तो व्हाट आई सजेस्ट यू to make the calculation easier and without making any error in the calculation. तो क्या करो, ये जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में लिख लो. So this can be written as 5 upon 100 into ये क्या आ जाएगा? This will be 25 into 5. तो 5 5 का क्या आएगा? 25 और 25 का स्क्वायर क्या आएगा? 625. So this will be 625 divide by 100. So this will be 6.25. Unit of force is Newton. So this is the answer, right? Without any error, आप calculation कर सकते हैं. Make it simple. So 6.25 Newton is the force, centripetal force acting on a particle so that it can perform the circular motion. Got it? जो उसका screenshot ले लो फटाक से.
नेक्स्ट सम जो है नेक्स्ट सम इज ऑल्सो शॉर्ट प्रॉब्लम है 3.9 टेक्स्ट बुक सॉल्व पेज number 44. Look at the sum. An object is traveling in a horizontal circle with uniform speed, right? At a time t is equal to 0, at time t is equal to 0, the velocity is given u bar is equal to 20 I cap plus 35 j cap kilometer per second. After 1 minute, मतलब टाइम दिया है 1 minute, that is t is equal to 1 minute, which is equal to 60 seconds. The velocity become final velocity v is equal to क्या minus 20I minus 35j. Okay, same unit kilometer per second. What is the magnitude of acceleration? So simple. Okay, तो यहाँ पे magnitude of acceleration find करना है, तो यहाँ पे हमको पहले magnitude of velocity निकालना पड़ेगा, right? So we have to find the magnitude of initial and final velocity. Okay, तो we will calculate the first u. यहाँ पे u और v almost same है, सिर्फ वो रिवर्स हुआ है यहाँ पे जर्नी, देखो माइनस साइन है अलग अलग. तो यहाँ पे सॉल्यूशन magnitude of initial and final velocity. Okay, so u is equal to v is equal to square root of क्या आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर लो या माइनस 20 का स्क्वायर लो सेम ही आएगा. सो हियर 20 का स्क्वायर आता है 400 प्लस 35 का स्क्वायर 1225 which will be 1625. ये इसका जो 1625 जो है वो 40 का जो स्क्वायर है 1600 उसके आसपास आता है. लगभग द आंसर इज मोर देन 40. ओके, तो आता है 40.3. तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 40.3 किलोमीटर पर सेकेंड. शायद रॉन्ग हो गया, मीटर पर सेकेंड चाहिए, समथिंग वेंट रॉन्ग. इट इज मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चाहिए. सो वी विल आल्सो टेक द मीटर पर सेकेंड हियर. As the velocity reverses in 1 minute, 1 मिनट में रिवर्स हो गया. देखो यहाँ पे क्यों रिवर्स हो गया, ये 20I प्लस 35J और इसका जस्ट माइनस हो गया, मतलब रिवर्स हो गया. ऐसे जाने का वेलोसिटी u और वापस आने का रिवर्स 1 मिनट में रिवर्स हो गया हो. सो हियर द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 2 मिनट. तो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम कितना हो गया, दैट इज 2 minutes. हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे आ रहा है. ओके, गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल. सो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2et इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन वेलोसिटी u. सो r इज इक्वल टू t इधर आ जाएगा u इंटू t अपॉन 2 pi, बट u कितना निकाला हमने 40.3 इंटू टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल कितना है 2 मिनट्स. 2 मिनट में 2 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3.14. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. पर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 मिनट्स 2 इंटू 60 सेकेंड. तो टाइम पीरियड हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट करना है आपको. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट. After solving this, you will get answer r is equal to r निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है, निकाल जो भी आएगा. We have to find acceleration. A is equal to v square upon r और u square upon r, which is equal to u square कितना है, u is 40, this one.
So 40.3 into 40.3 divided by the substitutes 40.3 into 120 डिवाइड बाय इसका कितना आएगा 6.28. सो सॉल्व दिस. तो ये कट हो जाएगा तो 40.23 ये 6.22 ऊपर जाएगा 6.28 डिवाइड बाय 120. इट्स द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो आप भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है. इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका 2.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कंसेप्ट क्या है, वो समझना जरूरी है. इसलिए यहाँ पे हमको वो करना है, कैलकुलेशन आपको करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल और मैनुअली. तो टेक्स्ट बुक के सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल हो गए. 2+2 4 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए. अभी कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, राइट. वी विल हैव सम न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के बाहर के. तो एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फटाफट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, लेट्स कम बैक टू द न्यूमेरिकल. तो पहला न्यूमेरिकल है परफॉर्म पांचवा है अपना सीक्वेंस में. फिफ्थ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. ओके, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड linear speed small b or the tip of speed of tip of a minute hand, tip of a minute hand, okay, of the length 10 centimeter, of length 10 centimeter. मान लो if I am taking this my watch, right, तो इसका जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है, बड़ा होगा वो घड़ी, राइट. सो 10 सेंटीमीटर है काफी. तो इसका जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर. एंड दैट टिप ऑफ द मिनट हैंड परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, राइट. तो पूरा एक चक्कर लगाएगा, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट. तो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी 2 पाई r. तो r यहाँ पे क्या होगा, r विल बी द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड will act as the radius. Okay, so given L is equal to R is equal to 10 सेंटीमीटर which is equal to, अभी सब SI में कन्वर्ट करने का, हमेशा SI में लेने का. ओके, सो 10 अपॉन 100 मीटर which is equal to क्या आएगा 0.1 मीटर. Always convert the CGS unit into SI unit for calculation. अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर दिया न्यूमेरिकल में तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा. सो एंगुलर स्पीड निकालना है. टू फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड एंगुलर स्पीड क्वेश्चन मार्क, लीनियर स्पीड क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे सिर्फ रेडियस दिया है, v नहीं दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे, राइट. तो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. यस, यहाँ पे जो टाइम दिया है, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है उसका जो टाइम पीरियड है, मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने को कितना टाइम लगता है 1 आवर. देखो आप घड़ी, आपके जो रूम में जहाँ बैठे हो आप, तो रूम में घड़ी होगी. जो वॉल क्लॉक है वो वॉल क्लॉक का टिप ऑफ द मिनट हैंड देखो, और देखो कि कितना टाइम लग रहा है वो मिनट हैंड को एक चक्कर लगाने को, दैट इज द 60 मिनट्स 1 आवर. तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स, यहाँ पे आवर नहीं चलेगा, मिनट नहीं चलेगा, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, 60 into 60, so 3600 सेकंड. So time period of minute hand
is equal to 60 minutes. But 60 minutes is equal to how many seconds? 60 multiplied by 60, which is equal to 3600 सेकेंड. देखो यहाँ पे दिया नहीं था, वो हमने थोड़ा इसके यहाँ पे उसका ठीक से पढ़ा. कंडीशन क्या दिया है, मिनट हैंड दिया है. अगर सेकेंड हैंड होता, मान लो इसकी जगह पे सेकेंड हैंड होता, तो सेकेंड हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे क्या था टाइम पीरियड? 60 सेकेंड. अगर मान लो मैंने एग्जाम में आपको मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के बदले में आर हैंड दिया है, तो आर हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटा, नॉट 24 आवर्स. कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाँ एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, ले 24 आवर्स नहीं, सिर्फ 12 आवर्स. सो द टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड is 12 hours. तो 12 hours को उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है. टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड इज 3600 सेकेंड्स. टाइम पीरियड फॉर सेकंड हैंड इज 60 सेकेंड. तो आपको प्रॉब्लम ठीक से पढ़ना है एग्जाम में, घाई नहीं करने की, जल्दबाजी नहीं करने की. ऐसे सम बहुत इजी होते हैं और जेई में, एडवांस में या सीटी में ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, तो आपको सॉल्व करना है. सो लेट्स फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 into 3.14 divided by 3600. So this can be written as omega is equal to 2 1 जा 2 18 जा. So 3.14 divided by 1800. तो इसको लॉग टेबल से आप सॉल्व कर सकते. So this can be solved by using log table. I will get the answer 1.746 into 10 raised to minus 3 radian per second. This is the angular velocity. Okay. Now let's find the time period. T is equal to time period क्या आएगा? 2 pi upon omega. 2 pi upon omega, which is equal to 2 into 3.14 divided by 1.746 into 10 raised to minus 3. तो इसको सॉल्व करो, 10 raised to minus 3 ऊपर चला जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद वी कैन फाइंड इट. ओके. एंगुलर वेलोसिटी निकाल दिया क्या? ठीक है. लीनियर स्पीड निकाल, सॉरी लीनियर स्पीड, टाइम पीरियड नहीं निकाले, टाइम पीरियड दिया है हमको निकालना है यहाँ पे लीनियर स्पीड. सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो v इज इक्वल टू आर कितना है? 0.1 into multiplied by this 1.746 into 10 raised to minus 3. So v is equal to, अभी देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं. अरे बाबा नहीं करने की जरूरत. 0.1 का मतलब होता है 10 raised to minus 1. तो 10 raised to minus 1 और 10 raised to minus 3, सिंपली 10 raised to minus 4. थोड़ा लॉजिक लगाना है यहाँ पे डोंकी वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है. ओके. सो दिस कैन बी रिटन एज 1.746 multiplied by 10 raised to minus 4 meter per second. So this is the linear velocity of minute hand, right, when it revolves in a circular path. So just take a screenshot for this and solve it properly, systematically. एक बहुत छोटा न्यूमेरिकल है. The propeller blades in an aeroplane. एरोप्लेन के जो प्रोपेलर होते हैं, उसके जो पंखे के होते हैं, पंखे एरोप्लेन के, राइट. प्रोपेलर ब्लेड्स इन एन एरोप्लेन आर 2 मीटर लॉन्ग. कितना लंबा है? 2 मीटर लॉन्ग है. If the tangential velocity of the tip of the blade is 378 meter per second. तो यहाँ पे लेंथ दिया है, लेंथ is equal to r is equal to 2 meter. Okay. And the tangential velocity v is equal to 378 meter per second of the propeller of the fan. What is the angular speed of the propeller? ओमेगा पूछा है, तो हमको पता है v is equal to ओमेगा कितना है? ओमेगा is equal to question mark. So v is equal to r omega. तो ओमेगा is equal to v upon r. So which is 378 divided by 2. तो ओमेगा is equal to 2 1 जा 2 8 जा 16 2 9 जा radian per second. So this is the angular velocity of the tip of the propeller of the fan. Okay, let's
लेंगे एरोप्लेन। अभी हम लेंगे कोनिकल पेंडुलम पे बेस पे जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल लेंगे, राइट। सो लेट्स हाउ द न्यूमेरिकल बेस ऑन कोनिकल पेंडुलम। A bob of mass दिया है 1 kg, mass of a bob is 1 kg attached at the end of 1 meter long string. So length L is equal to 1 meter long is whirled in a horizontal circle if the string makes an angle of 30 degree. तो थीटा दी यहाँ पे, तो कितना दिया 30 डिग्री। String makes an angle 30 degree with the vertical calculate the centripetal force acting on the bob. Okay, तो यहाँ पे centripetal force यानी FC पूछा है। Then to find centripetal force FC is equal to mv square upon r। लेकिन यहाँ पे velocity नहीं दी, velocity निकाले, right? So first we'll calculate the velocity, linear velocity. So v is equal to linear velocity of bob, right, when it moves the horizontal circle. So v is equal to square root of r g tan theta, or v square is equal to r g tan theta. Square is equal to r g tan theta. So just substitute this value here. So centripetal force Fc is equal to mass कितना दिया 1 into v r g tan theta, लेकिन tan 30 है यहाँ पे, divide by r, तो r कट हो जाएगा। So simply g यानी यहाँ पे कितना लेना है, g will be 9.8 और 10 लेंगे यहाँ पे, g is 10 meter per second, तो 10 into tan 30 कितना 1 upon root 3, tan 30 is 1 upon root 3. So this can be written as 10 upon 1.731, which is equal to क्या आएगा 10 upon this. So you will get answer 5.774 Newton is the answer. बहुत सिंपल है। So लेकर इसको हटा सकते। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी अलग फाइंड कर सकते हैं, फिर वो उसमें सब्सिट्यूट कर दी, जरूरत नहीं। जितना आपको कैलकुलेशन कम करना है वो कोशिश करो एंड ट्राई टू मिनिमाइज द स्टेप्स को कम करो, सो दैट यू विल इजी टू सॉल्व। अभी नेक्स्ट सम है 8 वाला सम, कोनिकल पेंडुलम पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now look at the next sum. The string of conical pendulum is 0.5 meter long. तो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर, एंड कैरीज अ बॉब ऑफ मास ऑफ द बॉब दिया है, m is 0.1 kg, 0.1 kg. If the period of conical pendulum is, period दिया है t is equal to 0.4 pi second, 0.4 pi second. Calculate the angle of inclination, थीटा निकालना है, of the string with the vertical. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले cos थीटा निकालना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला है वो लेना पड़ेगा, g दिया है, g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 10 जानबूझ के दिया है ताकि वो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। So what is the period of simple pendulum? T is equal to 2 pi square root of L cos theta upon small g। अभी यहाँ पे हमको एंगल निकालना है, राइट। तो एंगल निकालना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। जो क्वांटिटी निकालनी है उसको पहले सब्जेक्ट बनाओ,
मेक दैट क्वांटिटी एज अ सब्जेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे मुझे cos थीटा निकालना है, cos थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। तो व्हाट शुड आई डू हियर? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड पे एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। कई बार क्या है, बच्चे इसका स्क्वायर नहीं करते, दे जस्ट राइट 2 पाई, नहीं इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर इनटू एल कॉस थीटा डिवाइड बाय स्मॉल जी। नाउ मेक कॉस थीटा एज अ सब्जेक्ट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये स्मॉल जी इधर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू ए, लेंथ यहाँ पे लेना एल। आई बात समझ में? अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? टाइम पीरियड दिया शायद, यस, 0.4 पाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 10 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू लेंथ दिया है 0.5। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मास दिया है 0.1 kg, बट माय डियर, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। वाई? ये वो मास पे डिपेंड नहीं होता है, चाहे कितना भी मास लो, 1 किलो लो, 2 किलो लो, 10 किलो लो, जो उसका टाइम पीरियड है वो सेम ही रहेगा फॉर द सेम लेंथ एंड सेम वर्टिकल एंगल, राइट, एंड सेम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फॉर ऑल द मासेस। तो मास आपने अलग अलग भी लिया तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे एक सेट बन सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सीईटी में, राइट? सो मास ऑफ द बॉब इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। तो मास सिंपल आपको फंसाने के लिए दिया है, जस्ट कोई उसका कोई यूज नहीं यहाँ पे। सो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.4 का स्क्वायर कितना था? 0.16, 0.16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 0.5। तो पाई स्क्वायर कट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? ये हो गया आपका 1.6 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 4 पाई 20, तो ये बन जाएगा आपका 2। सो दिस इज 0.8, राइट, cos थीटा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0.8 है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.8। तो लॉग टेबल में आपको जो नेचुरल कोसाइन दिया है, नेचुरल कोसाइन में 0.8 का करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग मिनट आपको देखना है लॉग टेबल में। सो यू विल गेट द आंसर, दैट विल बी 36 डिग्री 52 minutes. This is the angle made by the string with the vertical. Okay, so this is all about the numericals. So just take a screenshot. चलो और एक दो न्यूमेरिकल ले लेते, बेसिक, तो बच्चे वो भी ले लेते, सो दैट अपना खत्म हो जाएगा। कोनिकल पेंडुलम पे लेते, बाकी The velocity of a particle performing uniform circular motion changes from initial velocity दिए u bar is equal to 4i cap plus 3j cap मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i cap minus 4j cap मीटर पर सेकेंड इन अ मिनिमम टाइम दिया है, मिनिमम टाइम
0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। यहाँ पे क्या पूछा है? पहला टू फाइंड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टी निकाला है, फाइंड टी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सेकेंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर, एंड थर्ड वाला जो है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ए सफिक्स सी, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सो दीज आर द क्वांटिटी व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करने का, थोड़ा सा देखने का, जो वेलोसिटी दिया है 4i + 3j एंड 3i - 4j, ओके। टाइम भी दिया है 0.2 सेकेंड मिनिमम टाइम हो। तो यहाँ पे इंस्टेंट u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो अभी यहाँ पे u एंड v आर परपेंडिकुलर कैसा होगा देखते हैं। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, ये u है, दिस इज u एंड दिस इज v, राइट, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे परपेंडिकुलर होगा? अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 आएगा, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप विच इज इक्वल टू। अभी जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का, तो जो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर है, जैसे i डॉट i, j डॉट j, वही लेना है। जो अपोजिट है, नॉन आइडेंटिकल है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, तो वो लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे i डॉट i का जो कोएफिशिएंट है उसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 4 × 3 माइनस 3 × -4, 3 × -4, so this will be 12 minus 12, which is equal to 0. If the dot product is 0, it means that both the velocities u and v are perpendicular to each other, okay. That is the instantaneous velocity of the particle turn through 90 degree. मतलब जो instant velocity कितना डिग्री से टर्न हुए, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा टर्न्स टू π/2, ओके, थ्रू इन मिनिमम टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। कितने टाइम में वो टर्न हुआ? 0.2 सेकेंड में। सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज, सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा? सो t इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सो 90 डिग्री में। देखो यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक जाने को जो टाइम लगा है कितना है? 0.2 सेकेंड। और पूरा लगने के लिए कितना लगा? पूरा घूमने के लिए कितना लगेगा उसको? दैट विल बी 4 क्वाड्रेंट्स, 4 बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, राइट। सो t इज इक्वल टू, इट विल बी 4 टाइम्स स्मॉल t, 4 टाइम्स स्मॉल t। यहाँ से 90 डिग्री में उसको रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? 0.2। तो पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना लगेगा उसको? दैट विल बी द 4 times t, right? So it is 4 into t, 4 into 0.2, which is equal to 0.8 second. So angular speed omega is equal to omega, या फिर उसको दूसरे भी सॉल्व कर सकते हैं, और omega is equal to theta upon t, which is π/2 divided by 0.2, which is equal to क्या आएगा? π/2 into 10/2, which is 5π/2 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो पीरियड ऑफ वही आएगा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो 2π डिवाइड बाय ओमेगा कितना है? 5π/2, तो π कट हो जाएगा, 4/5, तो 0.8 सेकेंड। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इफ यू डोंट नो हाउ टू गेट दिस, ये कैसा है, तो आप ये इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा कितना है? π/2, टाइम कितना दिया है? मिनिमम टाइम 0.2, तो आफ्टर दिस यू कैन फाइंड ओमेगा 5π/2 रेडियन पर सेकेंड, एंड इफ यू आर गेटिंग ओमेगा 5π/2 रेडियन पर सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 4/5, 0.8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आपको मिल गया। Then what is the next you have to calculate? That is the radius of its circular path. अभी r निकालना है, तो r निकाल सकते हैं, right? So r can be calculated. R can be calculated by using the relation t is equal to 2πr upon v.
but the time period t is equal to 2 pi r upon v. कोई भी एक वेलोसिटी ले लेंगे, therefore r is equal to capital T into v divided by 2 pi. तो यहाँ पे v निकालना पड़ेगा. So mod of u is equal to mod of v, which is equal to square root of 4 का square plus 3 का square, which is equal to 16 plus 9, which is equal to square root of 25. तो mod of v is equal to 5 meter per second. तो substitute value, तो r is equal to t कितना है हमारा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय v कितना है 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14. इसको सॉल्व करो, 8 5 40, मतलब ये आ गया पास 4/2 इंटू 3.14. सो 2 1 जा 2 2 जा, तो r इज इक्वल टू 2/3.14. सो r इज इक्वल टू कितना आएगा, सिंप्लीफाई गेट 0.64 मीटर सॉल्व करने के बाद. ओके, और जो लास्ट वाला है दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो थर्ड क्वांटिटी. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, थर्ड क्वांटिटी AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. ओके, तो v कितना निकाला हमने 5 का स्क्वायर कितना है 25 डिवाइड बाय r कितना है 0.64. तो जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट आंसर. दिस विल बी अराउंड 39.25 meter per second square. Just take a screenshot.